Namaskar to all of you. I am Dr. Pallavi Jain from School of Computing Science and Engineering of Galgodias University. I am giving this lecture of multimedia system of BCA. Now, in the series, I have in the series of Unit 1. After Unit 1, we are starting the Unit 2, that is building blocks, creating and editing media elements. Building blocks for what? Building blocks for multimedia system. So, building blocks for creating and editing media elements. First element we will study the sound element. Okay, so in the series, the prerequisite for this lecture, yeah, for this subject is development of computer-based interactive multimedia and study on learning in elementary education. What is about multimedia? Multimedia is a collection of text, audio, graphic, video, interactive computer designing and animation. So the prerequisite of this lecture is to develop a computer-based interactive multimedia system. The objectives of multimedia system is to send information, educate the public, and provide entertainment. It includes television, radio, newspapers, and online news sources. Nowadays, it has become an indispensable part of modern computer technology because everywhere we studied about in Unit 1, we studied about the applications of multimedia in that uh, everywhere in every field of education, training, computer art, entertainment, computer aided designing, in every field we find the utility of computer graphics and multimedia. So now our unit second, the first topic is sound or audio, the basic building block of multimedia, that is sound or audio. So, the objective of this lecture is to understand how computers process sound, because to process the sound in every computer we need some drivers, we need some device cards, etc. Okay, so to understand how computers process sound and to understand how computers synthesize sound, because when we studied about the components of multimedia, we discussed about the sound component, that is to understand how computers process sound, synthesizes sound and store sound, है ना? So in this lecture we will study in detail this concept and to understand the differences between two major kinds of audio, namely digitized sound and MIDI music. So in the last we will discuss the digitization of sound and MIDI music files, as we uh, heard earlier, MIDI format of sound. So, the contents of this lecture is the nature of sound. Firstly, we will study the nature of sound, then computer representation of sound. Through computerized, what about the representation of sound? Computer music, MIDI format, and MIDI versus digital audio. Okay, so let's start this lecture. The nature of sound. तो साउंड क्या है? साउंड इज अ फिजिकल फिनोमेनन produced by the vibration of matter and transmitted as waves. फिजिकल फिनोमेनन प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन ऑफ मैटर, ये ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेशन मोशन से हमारा प्रोड्यूस होता है एंड ट्रांसमिटेड एज वेव्स, और ट्रांसमिट किस फॉर्म में होता है? वेव्स की फॉर्म में. However, the perception of sound by human beings is a very complex process. It involves three systems. First of all, the source, which emits sound. Second, the medium through which the sound propagates or spread. And third one, the detector, which receives and interprets the sound. So first one is source, जो हमारा जहाँ से हमारी sound emit होगी through vibration or oscillatory movement या motion. Second, the medium through which we
spread या propagate our sound. And third one is detector. Detector means जो what receives the sound and interprets the sound. Detect करेगा, it detects the sound after receiving that sound. Okay, sound we heard every day are very complex. Every sound is comprised of waves of different frequencies and shapes. जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं पिक्चर में कि इसका एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड, टाइम, फ्रीक्वेंसी सब डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर. तो बट द सिंपलेस्ट साउंड वी कैन हियर इज अ साइन वेव. सिंपलेस्ट साउंड कौन सी है हमारी? साइन वेव. साउंड वेव्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स. पीरियड, कितने पीरियड में, ये जो नीचे आप ग्राफ में देख रहे हो नीचे, ये क्या है? पीरियड है ना. ये जो हमारा नीचे को आ रहा है ग्राफ, इसमें हम जो ये जो हमारा पैराबोला टाइप जो आ रहा है, जो जो हम ये नीचे देख रहे हैं, ये जो हमारा पीरियड जिसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस पीरियड में ये नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, इट गोज डाउन एंड अप, है ना, लाइक वाइज. तो इट इज नोन एज पीरियड. नाउ फ्रीक्वेंसी, pitch, second amplitude, loudness, amplitude, and bandwidth, that is dynamic. और टाइम है ना, कितनी बैंडविड्थ है हमारी साउंड की, क्या है, और कितने टाइम में हमारा आ रहा है. तो ये हमारा क्या है? इट इज ऑल अबाउट नेचर ऑफ साउंड, राइट. लेट्स मूव. नेक्स्ट है आपका पिच एंड फ्रीक्वेंसी. पिच एंड फ्रीक्वेंसी. पिच मतलब आपका जैसे पिच बोलते बोलते आपका पिच लो होता है, हाई होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी स्पीड आपकी हाई होती है, लो होती है. तो ये है पिच एंड फ्रीक्वेंसी. पिच इज द इंटरवल एट विच ए पीरियोडिक सिग्नल रिपीट्स रेगुलरली. इन द इंटरवल, एट द टाइम इंटरवल एट विच अ पीरियोडिक सिग्नल, जो कि आपका बार बार आपकी आवाज आ रही है, पीरियोडिक सिग्नल रिपीट्स रेगुलरली. जैसे आई एम गिविंग लेक्चर बाय स्पीकिंग, तो मेरा पिच क्या होगा मेरी. अब पीरियड क्या है? पहले तो पीरियड बता रहे हैं यहाँ पर कि पीरियड जो हमने लास्ट में पढ़ा कि पीरियड, पिच और फ्रीक्वेंसी, ये पढ़ा ना हमने अभी, इसमें ग्राफ में देखा था हमने यहाँ पर कि दिस इज पीरियड, है ना. पिच क्या है हमारी? दिस वन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और फिर ये एम्पलीट्यूड, ये टाइम, है ना. तो पीरियड हमारे हम कैसे डिफाइन करेंगे? Period is the interval at which a periodic signal repeats regularly, है ना, कि वही सिग्नल हमारा रेगुलरली रिपीट हो रहा है, तो वो तुम्हारा पीरियड हो गया. नाउ पिच. पिच इज द परसेप्शन ऑफ साउंड बाय ह्यूमन बींग्स, है ना, कि इट इज मेजर्स हाउ हाई इज द साउंड एज इट परसीव बाय अ लिसनर. हाई एंड लो, हम बोलते हैं ना कि हमारे पिच हाई है या लो है, हम जब बोल रहे हैं तो, है ना, तो ये वो है. नाउ फ्रीक्वेंसी, it measures a physical property of a wave. Physical property of a wave, it is the reciprocal value of period, यानी f is equals to 1 upon p. Reciprocal मतलब opposite value of period, 1 upon p. The unit is hertz और kilohertz. जो हमारी साउंड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? hertz और kilohertz. Musical instruments are tuned to produce a set of fixed pitches. Okay. तो इस तरह से हमारी इंफ्रा साउंड का हमारा ये स्पीड होती है 0 to 20 हर्ट्ज. ह्यूमन हियरिंग रेंज हमारी क्या होती है? 20 to 20 किलो हर्ट्ज. और अल्ट्रासाउंड हमारा 20 to 1 गीगा हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज टू गीगा हर्ट्ज. और हाइपर साउंड 1 गीगा हर्ट्ज टू 10 टेट्रा हर्ट्ज. ओके, तो ये हमारा पिच एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में था. अब है लाउडनेस एंड एम्पलीट्यूड. जैसे कहते हैं ना कि हाउ लाउड यू आर, है ना, तो लाउड मतलब तेजी, लाउडनेस एंड एम्पलीट्यूड. सो द अदर इम्पॉर्टेंट परसेप्चुअल क्वालिटी इज लाउडनेस और वॉल्यूम, कि हाउ लाउड वी आर और हमारी वॉल्यूम कितनी पे है ना. एंड एम्पलीट्यूड क्या है? इज द मेजर ऑफ साउंड लेवल्स. फॉर ए डिजिटल साउंड एम्पलीट्यूड इज द सैंपल वैल्यू. फॉर अ डिजिटल साउंड एम्पलीट्यूड इज द सैंपल वैल्यू. एम्पलीट्यूड अगर हम लें तो वो हमारा क्या हो जाता है? एक सैंपल हो जाता है ना, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या है? इज द मेजर ऑफ साउंड लेवल्स, कि हमारी किस लेवल पे हमारी साउंड आ रही है, वो उसका मेजरमेंट क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड.
तो दैट रीजन दैट साउंड्स हैव डिफरेंट लाउडनेस इज दैट दे कैरी डिफरेंट अमाउंट ऑफ पावर। भाई डिफरेंट डिफरेंट लाउडनेस हमारी आई, कभी हम धीरे बोलते हैं, कभी हम लाउड बोलते हैं, तो ये किस पे बेस्ड है? बिकॉज दे वी कैरी डिफरेंट अमाउंट ऑफ पावर। द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। कहता नहीं कि हमारी मिक्सी इतने वॉट की है, ये वाली हमारा इतने वॉट का चार्जर है, इतने वॉट का एसी है, ये बोलते हैं ना। तो जितना ज़्यादा वॉट है उसमें उतनी ज़्यादा ही एम्पलीट्यूड होगा। तो द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज द अमाउंट ऑफ पावर। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है हमारी? अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिटेड थ्रू एन एरिया ऑफ 1 square meter ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन डायरेक्शन ऑफ द साउंड। ये ध्यान से पढ़ना। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज द अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिटेड, यानी जो साउंड की हमारी इंटेंसिटी है वो क्या है? हमारा पावर ट्रांसमिटेड थ्रू एन एरिया ऑफ 1 square meter ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू, वो परपेंडिकुलर होगा किससे? टू द प्रोपेगेशन डायरेक्शन ऑफ द साउंड। तो इस तरह से हमारी इंटेंसिटी में मेजर होगी। ये हमने मेजर करके भी दिखा रखी है, अभी हम आते हैं वहाँ पे। और इफ द इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड इज 1 watt अपॉन स्क्वायर मीटर वी मे स्टार्ट फीलिंग द साउंड, है ना। कि भाई अगर हमारी इतनी मिनिमम होगी पावर, क्या होगी? 1 watt अपॉन m², है ना। इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमारी अगर इतनी होगी तो देन वी मे स्टार्ट फीलिंग द साउंड, द ईयर मे बी डैमेज्ड। दिस इज नोन एज द थ्रेशोल्ड ऑफ फीलिंग, है ना। जब हमारा इतना क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड हो जाएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड ऑफ फीलिंग। इफ द इंटेंसिटी इज 10 to the power -12 watt per square meter we may just be able to hear it. This is known as threshold of hearing. ऊपर वाला क्या था? थ्रेशोल्ड ऑफ फीलिंग। और नीचे वाला क्या था? क्या है ये? थ्रेशोल्ड ऑफ, थ्रेशोल्ड मतलब एनर्जी, एनर्जी ऑफ हियरिंग। तो द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ टू डिफरेंट साउंड्स is measured using the unit bell or more commonly decibel, है ना। यानी the relative intensity of two different sounds, feeling और hearing वाले, is measured using the unit bell or decibel. It is defined by relative intensity in decibel 10 log I2 upon I1. एक इसमें से थ्रेशोल्ड फीलिंग है और एक इसमें से थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है। वेरी ऑफन वी विल कंपेयर अ साउंड विद द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट है हमारा डायनामिक रेंज एंड बैंडविड्थ, है ना। डायनामिक रेंज, डायनामिक मीन्स कीप ऑन चेंजिंग, है ना। तो डायनामिक रेंज मीन्स द चेंज इन साउंड लेवल्स, यानी जो हमारा साउंड लेवल जो चेंज हो रहा है बार बार, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ लार्ज ऑर्केस्ट्रा कैन रीच 130 डेसिबल एट इट्स क्लाइमैक्स एंड ड्रॉप टू एज लो एज 30 डेसिबल। यानी ऑर्केस्ट्रा आपने सबने सुना होगा, ऑर्केस्ट्रा पार्टी होती है तो उसमें क्लाइमैक्स पे जो हमारा वो होता है ऑर्केस्ट्रा मतलब हाई स्पीड पे, तो उसकी डेसिबल कितनी होती है? 130, और लोएस्ट कितनी होती है? 30 एट इट्स सॉफ्टेस्ट, गिविंग अ रेंज ऑफ, यानी हमारी रेंज कितनी निकली? 130 माइनस 30 तो 100 डेसिबल। तो ये हमारी हो गई डायनामिक रेंज। और बैंडविड्थ क्या हो गई हमारी? इट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज अ डिवाइस कैन प्रोड्यूस और अ ह्यूमन कैन हियर। यानी बैंडविड्थ मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि बैंडविड्थ क्या है आपके, उसकी वाईफाई की बैंडविड्थ हमारी स्लो आ रही है ना। तो बैंडविड्थ क्या है? द स्पीड एट विच द डिफरेंट सिग्नल्स रीच फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो ये क्या है हमारा? इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज अ डिवाइस कैन प्रोड्यूस और अ ह्यूमन कैन हियर। ये सबका दिया हुआ, जैसे एफएम रेडियो की आपकी इतनी बैंडविड्थ हो सकती है, एएम रेडियो, सीडी प्लेयर, टेलीफोन, चिल्ड्रन ईयर जो सुन सकता है अच्छे से, ओल्डर ईयर्स, मेल वॉइस, फीमेल वॉइस, तो ये सब इनकी बैंडविड्थ आपको गिवन है। नाउ कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड। कंप्यूटर में आपका साउंड का जो है वो कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है? जो साउंड वेव्स आपकी आती हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में आती है ना। कंप्यूटर में जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है जिस भी चीज का, वो कैसा होता है? डिजिटल। तो साउंड वेव्स आर कॉन्टिन्यूअस व्हाइल कंप्यूटर्स आर गुड एट हैंडलिंग डिस्क्रीट नंबर्स, ठीक है। इन ऑर्डर टू स्टोर ए साउंड वेव इन अ कंप्यूटर सैंपल्स ऑफ द वेव आर टेकन, ठीक है। जो वेव्स होती है हमारी उसका सैंपल हम लेते हैं। ईच सैंपल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर दैट विल बी द कोड। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिजिटाइजेशन। तो डिजिटाइज्ड साउंड हमारी यूज होती है ना, कोड्स के द्वारा।
तो दिस मेथड ऑफ डिजिटाइज साउंड इज नोन एज पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन, पीसीएम, पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो हमने ये जो डिजिटाइजेशन का पार्ट पढ़ा वो क्या पढ़ा कि साउंड वेव्स हमारी कंटिन्यूअस होती हैं व्हाइल कंप्यूटर्स आर गुड एट हैंडलिंग डिस्क्रीट नंबर, डिस्क्रीट मतलब डिजिटल नंबर 0 and 1। ठीक है, तो जब हम अपनी साउंड वेव स्टोर करते हैं तो सैंपल लेते हैं उसका, और ईच सैंपल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कोड, ये हमारा डिजिटाइजेशन होता है। और डिजिटाइजिंग साउंड को जो मेथड जो हम करते हैं फॉलो, उसको पीसीएम बोलते हैं, पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन। अकॉर्डिंग टू निक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम, निक्विस्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सैम्पलिंग थ्योरम एक बनाई थी, in order to capture all audible frequency components of a sound up to 20 kilohertz, we need to set the sampling of at least twice of this। तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने नॉइसलेस चैनल्स बनाए थे। क्या बनाए थे? नॉइसलेस चैनल्स टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन, निक्विस्ट ने। अनदर एस्पेक्ट वी नीड टू कंसिडर इज द रेजोल्यूशन, यानी रेजोल्यूशन क्या है? द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ sample. Often 16 bits are used for each sample in a high quality sound. This gives the SNR of 96 decibel. SNR क्या है? Sound and noise ratio, है ना, 96 डेसिबल। नेक्स्ट है हमारा ऑडियो फाइल फॉर्मेट। ऑडियो की हमारी फाइल फॉर्मेट क्या होता है? मोस्ट कॉमनली यूज डिजिटल साउंड फॉर्मेट इन विंडोज सिस्टम इज .wav फाइल। .wav हमारी वेव साउंड फाइल का एक्सटेंशन होता है ना, जो कि हम पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन में डिजिटल सैंपल सेव करते हैं, उनका .wav होता है। ठीक है, each each wave file has a header containing information in the file, जैसे उसमें टाइप ऑफ फॉर्मेट, साइज ऑफ डेटा, नंबर ऑफ चैनल, सैंपल्स पर सेकेंड, बाइट्स पर सैंपल, ये सब इन्वॉल्व होता है। देयर इज यूजुअली नो कंप्रेशन, नो डेटा कंप्रेशन इन वेब फाइल्स। ठीक है, अदर फॉर्मेट्स में यूज डिफरेंट कंप्रेशन टेक्निक टू रिड्यूस फाइल साइज। तो एक तो हमारा .vox यूज एडेप्टिव डेल्टा पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन, ये बहुत डिटेल पार्ट है जिसको नहीं समझना है हमें। एक MP3 MPEG-1 लेयर 3 ऑडियो, MP3 MP4 आप सुनते हो ना कि ये जो ऑडियो की फाइल्स में जो रिकॉर्डिंग में आते हैं, रियल ऑडियो फाइल इज ए प्रोप्राइटरी फॉर्मेट। सो दिस वन। नाउ ऑडियो हार्डवेयर, ऑडियो के लिए हार्डवेयर भी होने चाहिए और सॉफ्टवेयर भी होने चाहिए। तो एक तो रिकॉर्डिंग एंड डिजिटाइजिंग साउंड के लिए हमारे हार्डवेयर होने चाहिए, एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्टर ADC, एक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर DSP, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, जो जिसमें कि फिल्टरिंग, मॉड्यूलेशन, कंप्रेशन ये सब होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये तो था रिकॉर्डिंग के लिए, और एक है हमारा नेक्स्ट प्लेबैक साउंड, जहाँ से हमारी बैक से जैसे प्लेबैक सिंगर होता है ना, प्लेबैक साउंड हमारी किस तरह से आती है? अ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर प्रोसेसेस द सैंपल, जो ऊपर ये डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर था उसने फिल्ट्रेशन करी थी, कंप्रेशन करा था, वही क्या करेगा? उस सैंपल को प्रोसेस करेगा, दैट इज डीकम्प्रेशन। पहले तो कंप्रेशन और फिर रिसीविंग एंड पे पहुंचने से पहले उसका डीकम्प्रेशन, डीमॉड्यूलेशन, जो पहले मॉड्यूलेशन करा था, एंड सो ऑन। और शुरू में जो ये था एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, अब होगा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, DAC। All these hardware devices are integrated into a few chips on a sound card। हर एक सिस्टम में साउंड कार्ड एक इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, साउंड कार्ड फॉर ऑडियो एंड वीडियो कार्ड फॉर वीडियो। ठीक है, तो मैक्सिमम सैम्पलिंग रेट, ये सब हमारा डिजिटाइजेशन ऑफ साउंड में काम आता है। अब ऑडियो सॉफ्टवेयर, ऑडियो के लिए क्या सॉफ्टवेयर चाहिए? विंडोज डिवाइस ड्राइवर चाहिए एक तो, है ना, ये तो कंट्रोल करता है हार्डवेयर डिवाइस। और एक हमारा क्या चाहिए? मैनी पॉपुलर साउंड कार्ड्स आर मेन, प्लस एंड प्ले। ठीक है, मेनली साउंड कार्ड आपको चाहिए। इफ यू डू नॉट हियर साउंड यू शुड चेक द सेटिंग सच एज इंटरप्ट, DMA चैनल्स एंड सो ऑन। DMA क्या है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस चैनल्स, जहाँ से हमारे साउंड हमारी गड़बड़ हो सकती है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। डिवाइस मैनेजर से हम चेक कर सकते हैं, जो हम करते हैं हर बार। ठीक है, मिक्सर, जो हमारी साउंड को मिक्स करते हैं, जैसे प्लेबैक वॉल्यूम, रिकॉर्डिंग वॉल्यूम, कंबाइंड साउंड,
रिकॉर्डिंग करता है विंडोज एज ए सिंपल साउंड रिकॉर्डर। आजकल आपके मोबाइल में भी टूल्स में आता है रिकॉर्डर। एडिटिंग, सिंपल एडिटिंग के लिए लिमिटेड एडिटिंग फंक्शन, चेंजिंग वॉल्यूम, डिलीटिंग, ये सब। लास्ट पार्ट है हमारा कंप्यूटर म्यूजिक मिडी, मिडी फॉर्मेट। मिडी का हमारा क्या है, देयर इज अ बेटर वे टू जनरेट हाई क्वालिटी म्यूजिक, this is known as MIDI. The full form of MIDI is Musical Instrument Digital Interface. Musical Instrument Digital Interface. तो साउंड वेव्स वेदर अकर्ड नेचुरल और मैन मेड आर वेरी ऑफन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो भी हम साउंड वेव्स हमारी आती हैं, दैट इज दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज उसमें बहुत होती हैं, कभी हाई कभी लो कभी कुछ। तो डिजिटल साउंड इज रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड टू रिकॉर्ड कॉम्प्लेक्स साउंड। अब वो थी जो अभी तक हमने पढ़ा, वो था डिजिटाइजेशन। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो मिडी फॉर्मेट। तो इन दोनों में डिफरेंसेस भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो थोड़ा वो पहले वाला जो था वो कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्रीक्वेंसीज। हाउएवर इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू जनरेट कॉम्प्लेक्स साउंड। तो देर इज अ बेटर वे टू जनरेट हाई क्वालिटी म्यूजिक थ्रू मिडी, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये क्या है? इट इज ए कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड developed in the early 1980s for electronic instruments and computers. It specifies the hardware connection between equipments as well as the format in which the data are transferred between the equipments. यानी एक तो ये हार्डवेयर कनेक्शन को मॉनिटर करता है, और क्या करता है, फॉर्मेट देखता है कि किस में डेटा ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन द इक्विपमेंट्स। कॉमन मिडी डिवाइसेस इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल सिंथेसाइजर्स, जहाँ से हमारी आवाज़ सिंथेसाइज होती है, मॉड्यूल्स एंड मिडी डिवाइसेस एंड कॉमन साउंड कार्ड्स। जनरल मिडी इज अ स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड बाय, जो जनरल मिडी है वो स्टैंडर्ड है, वो किसने स्पेसिफाई किया है? जो मैंने आपको कहा था कि एवरी सॉफ्टवेयर या एवरी रूल इज अ मस्ट टेक अप्रूवल फ्रॉम एनी स्टैंडर्ड। तो ये किसने स्पेसिफाई किया है? मिडी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने। ठीक है, तो हमारा ये है मिडी हार्डवेयर में आपका, जैसे पहले था वो साउंड हार्डवेयर है ना, वो साउंड डिजिटाइजेशन का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। अब इसका भी इन फॉर रिसीविंग मिडी डेटा, आउट फॉर आउटपुटिंग मिडी डेटा, THRU फॉर पासिंग मिडी डेटा टू द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट। तो ये वेरियस पोर्ट्स हैं जो आपके इसमें मिडी इंटरफेस में लगते हैं। देखो, डेजी चेन टुगेदर, डेजी चेन में ये CPU में आपके लगता है इस तरह से, मिडी डिवाइस इन आउट, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। मिडी सॉफ्टवेयर आपका मिडी प्लेयर फॉर प्लेइंग मिडी म्यूजिक, साउंड कार्ड, इसमें आपका ये इनेबल होगा मिडी प्लेयर। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आपका लाइक ऑडियो डिवाइसेस, मिडी डिवाइसेस रिक्वायर अ ड्राइवर, सेलेक्ट एंड कॉन्फ़िगर मिडी डिवाइसेस फ्रॉम द कंट्रोल पैनल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिडी वर्सेस डिजिटल ऑडियो। तो डिजिटल ऑडियो में और मिडी ऑडियो में आपका डिफ्रेंशिएट हम करते हैं, यानी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल साउंड वेव्स, ये तो है डिजिटल ऑडियो, और ये है एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ म्यूजिकल साउंड एंड साउंड इफेक्ट्स। File size is large if without compression. MIDI files are much more compact. Quality is in proportion to file size. जैसे जैसे फाइल साइज बढ़ता जाएगा आपकी क्वालिटी घटती जाएगी, और फाइल साइज इज इंडिपेंडेंट टू द क्वालिटी। ये है आपका MIDI फाइल। मोर सॉफ्टवेयर अवेलेबल, इसमें मच बेटर साउंड इफ द साउंड सोर्स इज ऑफ हाई क्वालिटी। प्लेबैक क्वालिटी लेस डिपेंडेंट ऑन द साउंड सोर्सेज। ओके, इसमें नीड मोर म्यूजिक थ्योरी, कैनॉट जनरेट स्पीच, इसमें कैन रिकॉर्ड एंड प्लेबैक एनी साउंड इंक्लूड स्पीच। So that was all about the lecture of unit second, that is building basic blocks of multimedia, and the first one was sound. Thanks and have a nice day.